dear students, welcome back in my class. So today we are going to start with a new topic, that is frigid zone. So by the end of this chapter, my dear students, you will able to learn that where frigid zone is located and its climate, about its climate, its wildlife and vegetables, and how people in this region live, spend their life. How what is the you can say what is the difficulties they face when they live in this region. Okay, so the important thing which we will learn in this chapter is number one is, my dear students, climate. That means climate of the area. Second, we are going to learn about vegetation and wildlife. That means what are the plants, shrubs, herbs grown here, and which animals or what type of animals live in this region. Third, we will learn about people, very important. People live in the frigid zone. So how people live in this area. Okay, so these are the topic. So first of all, my dear students, I will explain you that where is the this frigid zone is located. Where is this frigid zone is located? So I make a rough drawing of the earth. Suppose that this is our earth, and the frigid zone is located in the North Pole and in the South Pole. So these areas, North and South, these areas are called frigid zone. Okay, this is Arctic Circle and this is your Antarctic Circle. So this Arctic Circle and Antarctic Circle is called your frigid zone. So what are the countries in North Pole and in the South Pole? Which are the countries which are located here? So you have different countries. You can say Greenland, then you have Northern Canada, then you have Northern Alaska and Norway, Sweden, Finland, Ireland, Siberia, Northern Siberia, Russia. So all these countries are located in frigid zone, and where this frigid zone is located at the angle of, okay, it is located, you can say, at the angle of 66 by 4 degree north. Okay, so 66 by, sorry, it's 2 by half degree north and 90 degree its latitude. Okay, so it is saying 66 degree north and 90 degree north latitude. Okay, and same here in south also we have 66 degree 1.5 south and 90 degree latitude at the angle of these two. So this is how the frigid zone is located. I hope you understand that where it is located. It's simple. It is located in the North and South Pole, that is Arctic and Antarctic region, at the angle of 66.5 degree north and 90 degree latitude, and 66 degree
66.5 degree south and 90 degree latitudes. Okay, so this is the you can say this is how it is located. Now we are going to learn about its climate, vegetation, and the people who live here. So how they spend their life. It's as you can see that this area, frigid zone, receive a slightly sun rays. Okay, it receives slightly sun rays. Slightly sun rays. Slightly sun rays मतलब तिरछी सन रेज रिसीव करता है, ठीक है। जैसे आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में जो अर्थ है वो हल्की सी टिल्ट है, ठीक है। तो जो ये अर्थ है यहाँ पे जो सन की रेज है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। कौन से रीजन में? आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में, ठीक है। तो क्या होता है जब यहाँ पे सन की रेज कम पड़ती है तो यहाँ दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल बहुत ठंडे इलाके हैं, ठीक है, ये सब बहुत ठंडे एरियाज हैं। तो यहाँ पे सन की रेज बहुत कम पड़ती है, ऐसे टेढ़ी रेज पड़ती है, तिरछी सन रेज पड़ती है। तो उस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है? कोल्ड है। क्या है? कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 1, it has extremely cold climate, बहुत ठंड होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, जैसे कि यहाँ पे सनराइज बहुत कम पड़ती है तो क्या है यहाँ पे बर्फ के स्नो उसके चांसेस ज़्यादा है ना। आर्कटिक रीजन में देखोगे एंड एंटार्क्टिक रीजन में देखोगे, सो यू विल फाइंड दैट दिस रीजन इज कवर्ड विद अ थिक with glaciers, or you can say and a thick layer of ice. Okay, so second is that it is covered, this area is covered with glaciers and thick ice. Okay, thickly ice और thick ice, बहुत मोटी आइस होती है यहाँ पे। Okay, so this is 2 points we have learned, that as the sun rays do not directly reach in this Arctic and Antarctic region, so here the climate is extremely cold. Okay, and second, that this region is covered with glaciers and thick ice. So these two are the important points. And the thick ice and glaciers are not for 6 months or for 7 months. It's for whole year. पूरे साल यहाँ पे आइस रहती है और पूरे साल यहाँ पे ठंड रहती है, ठीक है। जिस वजह से बहुत ही कम लोग, जो यहाँ का क्लाइमेट है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहना पसंद करते हैं। ओके, then my dear students, we have very important you can say line also. Okay, so what is that line? That number 1, there is a continuous darkness during the winter and continuous daytime during the summer. यानी कि विंटर के टाइम पे यहाँ पे हमेशा डार्क रहता है, दिस एरिया इज ऑलवेज डार्क। और समर के टाइम पे दिस एरिया इज ऑलवेज हैव अ डे लाइट, सन रेज। ओके, दैट मीन्स यू कैन से पूरे साल में सिर्फ एक बार यहाँ पे सन राइज होता है और सन सेट होता है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो इस रीजन में विंटर में या तो पूरा डार्क होगा या फिर समर में पूरा डे होगा। ओके, सो simply we can say that in a year only one day is there where sun rises and then sun sets. Okay, so this was about your climate of this frigid zone, and which is you can say very important also.
Now the second topic which we will cover is your vegetation and wildlife. वेजिटेशन से बेटा आपको समझ आता होगा कि हम अब प्लांट्स के बारे में या यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, और वाइल्ड लाइफ से आपको कि कौन से एनिमल्स यहाँ पे होते हैं. ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ वी कैन नॉट से दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं या बहुत कम प्लांट्स होते हैं, ओनली फ्यू प्लांट्स, बट वी कैन से दैट ड्यू टू द ice which is covered all over this region, Arctic and Antarctic region. So here vegetation and wildlife होती है लेकिन उतनी नहीं होती. It's on mediocre, ठीक होती है. Okay, so what are the vegetations? कौन कौन से plants यहाँ पे उगते हैं? So we have you can say that this area or this zone has sparse vegetation. Sparse मतलब थोड़ी vegetations होती है, या you can say वो वेजिटेशन होती है जो यहाँ पे इस क्लाइमेट को सूट कर रहा है. ठीक है, देन वी हैव थंड्रा वेजिटेशन. थंड्रा वेजिटेशन छोटे ग्रासेस, छोटे श्रब्स, वो वाले वेजिटेशन होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द आइस. अब क्या होता है, पूरे साल यहाँ पे आइस रहती है. ठीक है, तो जब आइस यहाँ पे पिघलती है या जब आइस का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स है या फिर जो फ्लावर्स है वो निकलने स्टार्ट होते हैं. ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं पर कहीं पे वो निकलने स्टार्ट होते हैं. तो कौन सी यू कैन से वेजिटेशन या प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं? तो वो जो प्लांट्स है जो यहाँ पे उगते हैं वो है श्रब्स. ओके, देन वी हैव बेरीज, देन वी हैव मोसेस, देन वी हैव लिचेंस, grasses, and we have yes, grasses. Okay, so I will write so that you can understand. तो vegetation यहाँ पे होती है shrubs, grasses, then we have lichens, okay, then we have mosses. So these and many more, these are the vegetations which generally grow here when the thickness of the ice become less, और जब वो थिकनेस आइस की जो होती है वो कम हो जाती है. ओके, सो दीज आर द वेजिटेशंस. देन कम टू वाइल्ड लाइफ. नाउ वाइल्ड लाइफ इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. एनिमल्स कौन से होते हैं? यहाँ पे वही एनिमल्स पाए जाएंगे जो इस सराउंडिंग में, जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सके. ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर सके. ओके, या उनका इतना वो होगा, इतना उनके अंदर इतनी हिम्मत होगी, इतना वो होगा कि वो उस कोल्ड रीजन को बियर कर सके. ठीक है, तो वही एनिमल्स यहाँ पे पाए जाएंगे. और उनका जो थिकनेस है, उनकी जो बॉडी की जो थिकनेस होती है या फिर उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनको इस आर्कटिक रीजन में रहने के लिए हिम्मत देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं? यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं यू कैन से फॉक्सेस, बियर, पोलर बियर, यू कैन से पोलर बियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं. ऑक्स भी समटाइम यहाँ पे पाए जाते हैं. देन वी हैव वुल्व्स. तो foxes, polar bear, ox, wolves, these are some of the animals, and more on animals are squirrels भी यहाँ पे पाई जाती है. snowshoes यहाँ पे पाए जाते हैं. musk यहाँ पे पाए जाते हैं. then we have polar bear, I have already told you. then we have reindeer. Reindeer is also one of the important animal which is found in this regions. और इनकी bodies इतनी यू कैन से, इनके जो बाल होते हैं शरीर में, इनके जो हेयर होते हैं वो इतनी थिक होती है. ओके, तो यू कैन से कि गॉड ने इनको इतना थिक, इनके हेयर इतने थिक बनाए होते हैं कि ये इस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में भी अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं. ओके, अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं. ओके, नाउ सम एनिमल्स आर माइग्रेट एनिमल्स ऑल्सो. लाइक समर सीजन में या विंटर सीजन में वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे रीजन में चले जाते हैं, क्योंकि वो मे भी उस
उस रीजन के क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ यू कैन से यस, कुछ एनिमल्स ऐसे जो डॉर्मेंट हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह ठंडे इलाके से थोड़ी गर्म इलाके में चले जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Now we are going to learn about the life in the frigid zone. So as I have already told you that in this region ice बहुत ज़्यादा है ना, cold climate है, extremely cold है, तो लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे, how they feel living here. So number one point is बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, it is less populated area. Okay. This region, you can say, this region is less populated. Less populated यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। अगर लोग यहाँ पे रहते भी हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं due to the climatic reason of that area. So this area, my dear students, is less populated. Why it is less populated? Because here we have a thick ice which covered this region, due to which the people over here have very little time or very little things so that they can live there. And जो वहाँ का खाने पीने का भी you can say चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ पे कम मिलती है। ओके, हम वहाँ पे you can not grow rice over there or you cannot grow wheat over there. So these are the reasons जो कि बहुत ही कम जो बहुत कम populated है। ओके, so this was one of the point. And second point is mostly people जो यहाँ पे रहते हैं those are tribes or you can say hunters, hunter और gatherers, यानी कि ट्राइबल लोग, ट्राइबल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, और हंटर और गैदरर्स, यानी कि जो यहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं, देन दे माइग्रेटेड टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि अगर एक जगह में वो रह रही है और वो वहीं रहते रहेंगे तो क्या है कि इस एरिया में जो ठीक है आइस है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो समर के टाइम पे, सपोज समर के टाइम पे अगर वो वहाँ रह रहे हैं तो मे बी विंटर टाइम में दे विल शिफ्ट इन द अदर प्लेस, इन द मच वार्मर प्लेस, सो दैट उनका लिविंग भी चलता रहे और वो अपने साथ साथ अपनी लाइफ भी स्पेंड करते रहे, ठीक है। सो सेकेंड वन इज मोस्टली ट्राइबल पीपल लिव हियर। ओके, अब ये ट्राइबल पीपल आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लाइक सेमन दे रखे हैं इन्होंने, देन यू हैव याकुत्स, ओके, सो दीज आर द सम चुटालीज, सो दीज आर द सम tribes or you can say tribal people which live in this region. So my dear students, earlier this region people have to go from one place to another with the help of dogs or wolves. आपने देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग क्रिसमस डेज आपको आते हैं ना कि जो सेंटा क्लॉज होता है वो अपनी सवारी लेके आपको गिफ्ट देने आते हैं, तो क्या दिखाते हैं बर्फ़ में उनके साथ जो उनके वाहन होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वुल्व्स होते हैं या फिर कुछ डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो उस एरिया को सूट करते हैं, तो वो फिर आके आपके उसमें गिफ्ट रख के जाते हैं, राइट। तो पहले वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, ओके, जो एनिमल्स उनके कैरेट को खींच के लेके जाते थे, ओके, पहले तो इस तरीके से होता था ट्रांसपोर्टेशन। और अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होने लग गया, विद द हेल्प ऑफ मोटराइज्ड स्लेज, यानी कि अब जितने भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है उनमें मोटर्स लगी होती है, ठीक है, वो यू कैन से टेक्नोलॉजी के वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो गया है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन फ्रिजिड जोन वी हैव लर्नड दैट वेयर फ्रिजिड जोन इज लोकेटेड, दैट मीन्स इट्स लोकेशन।
location where it is located, and the second thing we have learned about its climate, its vegetation and wildlife, and people living in the frigid zone, or you can say frid zone. I hope you will understand this chapter. If you have any doubts, you can send a message, or you can write a comment on my YouTube channel. एंड इस चैप्टर को पढ़िए, जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करिए. अगर नहीं समझ में आता है देन कॉन्टैक्ट मी. फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड जय हिंद.